Hello dear children, I am Dr. Amina, HOD Chemistry from Dr. Amina classes. Let us take our journey in chemistry for the crash course of IIT, JEE and NEET. Don't forget to subscribe the channel, like the video, it is a hard work from us. So today we will start with the next chapter of physical chemistry, that is states of matter. जैसे कि पहले we have finished equilibrium, both chemical and ionic. Second we have done bonding in detail. Third we have done structure of atom. Then we have done thermodynamics, and now we will start with states of matter. This chapter is also one of the good physical chemistry chapter. So साथ पढ़ेंगे अपन और अच्छी तरह नॉलेज को गेन करेंगे. Now, a substance is said to be a solid if its melting point is above room temperature under atmospheric pressure. जैसे कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से अबव है तो उसे क्या कहेंगे? सॉलिड. ऐसी मतलब है स्टार इसलिए है क्योंकि स्टेट ऑफ मैटर मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस. सो एटलीस्ट यू नो दैट द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ सॉलिड इज व्हाट? इफ द मेल्टिंग पॉइंट इज अबव रूम टेम्परेचर. लेट्स कम द नेक्स्ट वन. अ लिक्विड. अ लिक्विड, when we say it is a liquid, if its melting point is below, what here? Above, here below room temperature, and boiling point is above room temperature. ठीक है, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, then it will become a liquid. Last, because state of matter means solid, liquid and gas. A gas, if its boiling point is below room temperature, under atmospheric pressure. Okay, so these are the three it can come in the statement one or anyone. So a substance is solid when its melting point is above room temperature under ATM pressure. Liquid if it is melting point is below and boiling point is above, and gas when its boiling point is below room temperature. Then after this we have to start a given substance can exist simultaneously in all the three states under specific condition of temperature and pressure. मतलब कोई specific condition अगर temperature pressure की है, then the substance can exist in all the three states. Like water can exist in three phases, we know: ice, liquid and gas at 0.01 degree Celsius and 4.58 mm pressure. इतना pressure लोगे और इतना temperature, so we will observe that ice can exist in all the three phases together. Okay. Now, the temperature at which all the three phases of the same substance exist together is called triple point. So please remember, the temperature when all the three phases like solid, liquid and gas, they can exist in the same or exist together is given by the name triple point. ठीक है बेटा, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का एक सिंपल सा मतलब वो बता दिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये पता होना चाहिए. अब ये नेक्स्ट आ रहा है, बिसाइड द अबव थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर द फोर्थ स्टेट, रिमेंबर द फोर्थ स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट. ये भी एक कॉमन है, मतलब नॉर्मली सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है, बट एक और स्टेट बताया जा रहा है जिसका नाम है प्लाज्मा स्टेट. उसमें होता क्या है? इट कंटेन मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस. मतलब जैसे अगर कोई भी सोडियम ले लो, सोडियम को अगर आयोनाइज करोगे तो Na पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन देगा. तो उस प्लाज्मा स्टेट में पॉजिटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और आता कैसे? हाउ इट इज ऑब्टेन? बाय सुपर हीटिंग ऑफ गैसियस स्टेट. एग्जाम्पल सन या स्टार्स में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है ना, सुपर हीटिंग, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे अगर गैस को हीट करोगे तो यकीनन आयोनाइज होएगी, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे. और जब इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलना शुरू होंगे तो पॉजिटिव आयंस बचेंगे. तो पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का जो मिक्सचर है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट. अब एक और एक नया सुनने में है कि भाई एक और है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन नहीं है बट है वो भी,
टोटल 5 स्टेट है। तो फिफ्थ स्टेट कंटेन सुपर कूल्ड सॉलिड in which the atoms lose their individual identity and condense to form a single super atom। मतलब इतना ज़्यादा सुपर कूल लिक्विड है जहाँ पर एक एक एटम अपने आप में अपनी आइडेंटिटी खो दिया उसने, और सारा का सारा एक सिंगल सुपर एटम जैसा बिहेव कर रहा है। तो इन जनरल व्हाट इज द कंक्लूजन दैट हाउ मेनी स्टेट्स वी हैव 5, बट द फर्स्ट 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड द लास्ट वन दैट इज द प्लाज्मा इज ऑल्सो ठीक है। फिफ्थ स्टेट बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है बेटा? ये जब एटम्स पास पास आते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन की और रिपल्शन की फोर्सेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो क्या लिखा है अपन ने? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एग्जिस्टिंग अमंग द एटम्स और मॉलिक्यूल्स other than ionic or covalent bond forces are called intermolecular forces। मतलब जैसे एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो जोड़ती है जैसे NaCl को, HCl को कोवेलेंट बॉन्ड जोड़ रहा है, ये नहीं, इनके अलावा और फोर्सेस होती हैं जब मॉलिक्यूल पास आते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं या रिपेल होते हैं, तो उन फोर्सेस को कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेस से हमें कोई खास लेना देना नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे मतलब पढ़ने का है। तो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अराइज ड्यू टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन। ये आपके इंटरेक्शन है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से आ सकती है, मतलब अपन को अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ना है तो डायपोल डायपोल। सेकेंड है आयन डायपोल, यहाँ जैसे दोनों मॉलिक्यूल पोलर है, डायपोल डायपोल यानी HCl और अमोनिया। आयन डायपोल यानी जैसे एक HCl और एक Na पॉजिटिव, आयन भी और एक डायपोल है। आयन इंड्यूस डायपोल, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल में पोलर नहीं होगा जैसे कि बेंजीन, और दूसरा जो है Na पॉजिटिव होगा, तो Na पॉजिटिव अपनी पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा उसमें। तीसरा है डायपोल इंड्यूस डायपोल, वो ये भी उसी जैसा है, बट यहाँ पर एक पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में पोलैरिटी इंड्यूस करेगा और यहाँ पर आयन इंड्यूस करेगा पोलैरिटी इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फिर आपके पास 5 आएगा डिस्पर्शन फोर्सेस, जिनका एक और नाम दिया है, अभी अपन पढ़ाएंगे डिटेल में, तो लंदन फोर्सेस। और फिर आपका आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो टोटल मिला के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आपके पास वो 6 हैं। इनमें से NCERT ने 1 दी हुई है, 4 दी हुई है, 5 दी हुई है और 6 दी हुई है। 2 और 3 नहीं दी हुई है, बट वो उसी में आती है, जैसे डायपोल डायपोल में आयन डायपोल और आयन इंड्यूस डायपोल आ सकता है। अब इसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर देखो, ये डायपोल डायपोल, डायपोल इंड्यूस डायपोल, डिस्पर्शन फोर्सेस आर कॉल्ड वॉन डे वॉल फोर्सेस। तो वॉन डे वॉल फोर्सेस सारी नहीं होती, ये 3 याद करो, डायपोल डायपोल या डायपोल इंड्यूस डायपोल या डिस्पर्शन फोर्स, दीज 3 आर कॉल्ड वॉन डे वॉल फोर्सेस। वाई? इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट वॉन डे वॉल। वॉन डे वॉल ने ये निकाली थी फोर्सेस, उसके ऑनर में ये अपन ने दिया है। अब इसमें से अपन पढ़ेंगे डिटेल में। पहला वाला है हमारा डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन में देखो नाम से ही लग रहा है डायपोल, डायपोल पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो डायपोल के मतलब से ये लग रहा है ये पोलर मॉलिक्यूल में होता है। तो कहाँ होता है ये वाला बेटा? इट अकर इन पोलर मॉलिक्यूल, मतलब जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, हैविंग परमानेंट डायपोल। तो कहाँ होता है ये? पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है जहाँ पर परमानेंट डायपोल होता है, मतलब 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होती है, परमानेंट होता है। जैसे आप बताओ HCl, अब HCl में एक H पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। HBr, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, और ये परमानेंट क्यों है? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, परमानेंट है, कोई अलग से नहीं, ये मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा। तो इन फोर्सेस का एक और नाम है कीसम फोर्सेस भी कहते हैं, ध्यान रखना। डायपोल डायपोल फोर्सेस का एक और नाम है कीसम फोर्सेस, साइंटिस्ट कीसम की वजह से उसने निकाली थी। और एक और इफेक्ट का नाम भी क्या है, ये सब स्टेटमेंट में आ सकता है, ओरिएंटेशन इफेक्ट, इसका एक और नाम है ओरिएंटेशन इफेक्ट। तो अगेन आई विल रिपीट, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आर नोन एज occur first in permanent molecule having permanent dipole, then they are also given by the name Keesom forces in honor of the scientist, and the effect is given by the name orientation effect because यहाँ पर orient हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस orient हो रही है।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ऑब्जेक्टिव बन के आ चुकी है, आती रहती है कभी कभी, मतलब बहुत कॉमन नहीं लेकिन आती है। इन स्टेशनरी पोलार मॉलिक्यूल, इन स्टेशनरी पोलार मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड में, जैसे HCl है या HBr, ये सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकते हैं ना। तो अगर सॉलिड स्टेट में है पोलार मॉलिक्यूल, स्टेशनरी यानी रोटेट नहीं कर रहा, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r3 वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोलार मॉलिक्यूल। जैसे अगर आपके पास दो पोलार मॉलिक्यूल हैं सॉलिड फॉर्म में, तो उनके अंदर जो डाइपोल डाइपोल एनर्जी होगी उनके बीच में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बाई 1/r3 इन द क्यूब में, 1/क्यूब ऑफ रेडियस। लेकिन अगर वही पोलार मॉलिक्यूल रोटेटिंग हो गए, मतलब वो सॉलिड में नहीं है, वो रोटेट घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं दूर दूर हो जाएंगे यकीनन, तो फिर वो प्रोपोर्शन होगी 1/r⁻⁶। जैसे याद रखो ये क्वेश्चन अभी IIT में आया है, ये 1/r3 वाला, ये पिछले साल ही आया है या पिछले साल, अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो दिखेगा अपन को। तो स्टेशनरी पोलार मॉलिक्यूल जो कि सॉलिड वाले हैं, उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल का पावर होता है 1/r3, और इसके अंदर अपना पावर होता है 1/r⁻⁶। किसके अंदर होता है? रोटेटिंग पोलार मॉलिक्यूल के अंदर 1/r⁻⁶ होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब ये वो वान टू वन फोर्सेज में से डाइपोल डाइपोल अपना हो गया। अब अपन आ रहे हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर नाम ही है कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, एक मॉलिक्यूल पोलार होएगा और दूसरा नॉन पोलार होएगा। तो जो पोलार मॉलिक्यूल होएगा वो अपनी पोलैरिटी नॉन पोलार में इंड्यूस करेगा, ये मतलब है। तो हियर द पोलार मॉलिक्यूल, ये पोलार वाला, इंड्यूसेस पोलैरिटी टू नॉन पोलार मॉलिक्यूल। ठीक है, पोलार मॉलिक्यूल अपनी पोलैरिटी नॉन पोलार में इंड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल नोबल गैसेस गेट पोलराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पोलार मॉलिक्यूल। ठीक है, नोबल गैसेस सब जानते हैं नॉन पोलार है, अगर कोई भी पोलार मॉलिक्यूल उसमें रखा तो वो अपनी पोलैरिटी उनमें इंड्यूस करेगा। तो यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, जैसे ऐसा भी हो सकता है, मान के चलो आपके पास अमोनिया है एक एग्जाम्पल, और दूसरा आपके पास बेंजीन है। बेंजीन नॉन पोलार है और अमोनिया पोलार है। तो अगर जैसे कभी कोई पेयर देखे बेंजीन और अमोनिया में कौन सी फोर्सेज है, तो व्हाट विल बी गिविंग द आंसर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। They have given by the name these forces Debye forces because it's in honor of the scientist Debye, and the effect is called induction effect, क्योंकि इंड्यूस कर रहा है पोलार मॉलिक्यूल अपनी पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है नॉन पोलार में, सो इट इज गिवन आल्सो बाय द नेम इंडक्शन इफेक्ट। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पर भी देखो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में जो इंटरेक्शन एनर्जी है इज प्रोपोर्शनल टू सेम एज 1/r⁻⁶। जैसे कि डाइपोल इंड्यूस डाइपोल डाइपोल में रोटेटरी में था, वैसे यहाँ है। These forces depend upon dipole moment present in polar molecule and upon the polarizability of neutral molecule। क्या मतलब? पोलार मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट कितना है, मतलब कितना पावर है कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितनी है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मतलब डिस्टॉर्ट करेगा, पोलार के पास जाएगा तो पोलराइजेबिलिटी का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच जाना, डिस्टॉर्ट कर देना। सो अपन के पास कितनी हो गई, आपने एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देख लिया वान टू वन फोर्सेज में डिटेल में, जिसे अपन कीसम या ओरिएंटेशन इफेक्ट कहते हैं, कीसम फोर्सेज। इसमें एक दोनों पोलार मॉलिक्यूल होंगे और स्टेशनरी में 1/r3 एनर्जी का डिफरेंस होगा और नॉन स्टेशनरी में 1/r6। फिर अपन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में जब आ रहा है, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल में मॉलिक्यूल एक पोलार है और एक नॉन पोलार है, और इसके अंदर अपन इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं, डिबाई फोर्सेज कहते हैं, इसमें भी 1/r⁻⁶ में। अब थर्ड टाइप ऑफ जो वान टू वन फोर्सेज हमारे पास है उनको हम कहते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस, या हम कहते हैं लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट लंदन, ये सब साइंटिस्ट के नाम हैं जिनके ऑनर में अपन ये बात कर रहे हैं। इट अकर बिटवीन नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स, ये किसके बीच में होता है? नॉन पोलार, जैसे कि H2 है, O2 है, N2 है। तो नॉन पोलार मॉलिक्यूल लाइक H2 O2 N2 और मोनो एटोमिक गैसेस, जैसे कि ये नोबल गैसेस है। ठीक है ना, तो डिस्पर्शन फोर्सेस में पोलार मॉलिक्यूल नहीं होता है, इसके अंदर खास कंडीशन है कि नॉन पोलार मॉलिक्यूल होएगा, जैसे ये H2 O2 सब में कोई पोलैरिटी नहीं है, सब होमोन्यूक्लियर सेम है, या फिर नोबल गैसेस में कुछ भी नहीं है। तो ये फोर्सेस, दीज फोर्सेस अराइज फ्रॉम द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड of the molecule may be distorted
सो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इज प्रोड्यूस। क्या मतलब है इस पूरी बात का? पहली बात तो एक बात ध्यान से समझना, किसी भी टाइप में जहाँ पर मतलब डिस्पर्शन फोर्सेस ना हर के साथ होती है, जैसे अगर आपके पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस उसमें भी डिस्पर्शन होंगी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल है उसमें भी डिस्पर्शन फोर्सेस होंगी, ये हर जगह रहती है। इनके अंदर मॉलिक्यूल में पोलार नहीं होता, नॉन पोलार मॉलिक्यूल होता है, ये खास बात है जो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। और इसके अंदर जो नॉन पोलार मॉलिक्यूल होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जैसे दो नॉन पोलार ले लिए, ये दो मेरे पास हीलियम है, मेरे दोनों हाथ हीलियम है, हीलियम का इस हीलियम की पॉजिटिव चार्ज और इस हीलियम के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के पॉजिटिव चार्ज घसीटेगी तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा ना, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी जगह पर से हट जाना। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हल्की सी, मतलब चार्जेस नहीं, मतलब इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि एक सेकंड भी देखा पर खत्म हो गया, ये होते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस वेयर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डिस्टॉर्टेड। अब ये क्या लिखा है, दीज फोर्सेस ऑपरेट ओनली ओवर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में ये होती है, मतलब कम डिस्टेंस होता है, जैसे 500 पिकोमीटर जैसा। एंड द मॉलिक्यूल शुड बी वेरी क्लोज, क्यों? क्योंकि उनमें एक्चुअल फोर्स तो है नहीं, सिर्फ पॉजिटिव जो न्यूक्लियाई है वो इलेक्ट्रॉन को घसीट रही दूसरे एटम की, इसलिए मॉलिक्यूल पास पास होना चाहिए। यहाँ भी एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन 1/r⁴ के लिए होती है बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो हर जगह 1/r⁴ है, एक्सेप्ट सॉलिड जहाँ पर मूव नहीं कर रहा है मॉलिक्यूल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में, उन पे 1/r⁴। इसकी मैंने एक एग्जांपल अच्छी दी है कि मैंने दिया है कि जैसे अगर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज डबल, अगर पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस डबल हो जाए तो एनर्जी डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2⁻⁶, क्योंकि ये एनर्जी और रेडियस आपस में अपोजिटली प्रोपोर्शन है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ गया, कितना डबल हो गया, तो 2⁻⁶ यानी 64, तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी बाई 64 टाइम्स। तो ये मतलब ऐसा कुछ भी आ सकता है बेटा, इसलिए अपन ने जब ये क्वेश्चन जेईई में आ चुका है तो फिर अपन इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये जो डिस्पर्शन फोर्सेज हैं दे आर द वीकेस्ट फोर्सेज, रिमेंबर दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेज, और सबसे वीक होती है उनकी मैग्नीट्यूड काय पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना है। देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट साइज, ध्यान रखना, लार्जर द साइज और ग्रेटर द मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लंडन फोर्सेज। ये ध्यान रखो, बहुत अच्छा लाइन है, जितना साइज ज्यादा है वितना ही, या मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है वितनी ही लंडन फोर्सेज ज्यादा होंगी, मतलब सेम प्रोपोर्शन चलेगी, ग्रेटर द साइज greater the molecular mass more are the London forces. I have given to you one very good example for this, like for hydrides of group 14 I am giving you order of boiling point and London forces, be very careful, CH4 SiH4 GH4, क्या मैंने बोला, जितना साइज ज़्यादा है उतनी ही लंडन फोर्सेस ज़्यादा होंगी या मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, और उतना ही बॉइलिंग पॉइंट। क्यों मैंने दिया बॉइलिंग पॉइंट? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट साइज पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट पॉइंट, लंडन फोर्सेस और डाइपोल और डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड अपॉन द साइज, ग्रेटर द साइज ग्रेटर द मॉलिक्यूलर मास more are the London forces. Next we will come to geometry of the molecule. The London forces also depend upon the geometry of the molecule. What is the meaning of geometry? ये भी सिंपल है, आइसोपेंटेन और एनपेंटेन। हम जानते हैं कि आइसोपेंटेन का सरफेस एरिया कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा, और उसका इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये लंडन फोर्सेस भी उसकी कम होंगी। तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और लंडन फोर्सेस का सेम चल रहा है। आइसोपेंटेन का कम होगा एनपेंटेन का, क्योंकि एनपेंटेन का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और लंडन फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। सो दिस इज brief and the very good description about the different type of intermolecular forces. Okay, dipole, then dipole-induced dipole and dispersion. All these are London, all these are yes, van der Waals forces in honor of the scientist van der Waals. Now, before we start the gas laws, I want to explain to you few very important things about the unit conversion. Please remember, unit conversion ये सब न्यूमेरिकल्स में आता है और ये नहीं करता बच्चा तो उसका न्यूमेरिकल यकीनन गलत बनता है। जैसे 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब होते हैं, इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एक डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर, तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ लीटर, या अगर मतलब डेसीमीटर क्यूब, रिमेंबर इट इज लीटर ऑल्सो, डेसीमीटर क्यूब मीन, डेसीमीटर क्यूब का मतलब होता है लीटर। तो वी कैन से 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर और डेसीमीटर क्यूब। और
इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और ये 3 है तो पावर 6 हो गए। ऐसे ही 1 ml रिमेंबर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात है, विच इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। उसी को मैंने समझाया फिर से। केल्विन और सेल्सियस के डिफरेंस अब सब जानते हैं, 273.15 प्लस सेंटीग्रेड गिव यू केल्विन। फिर ये प्रेशर, दीज आर द यूनिट ऑफ प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर रिमेंबर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर और 760 mm और 760 टोन। 1 बार में 0.987 एटमॉस्फेयर है, नॉर्मली अपन सेम मान लेते हैं। 1 एटमॉस्फेयर में 10⁵ पास्कल है और व्हाट इज पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इफ यू हैव अ लुक ऑन दीज यूनिट्स इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग द numericals. Let's move further to gas laws. This is very simple gas laws. Gas laws we have done like in NCERT also it is given very simple. The first one we are taking Boyle's law. You remember that Boyle's law gives the relation between volume and pressure, but be very careful at constant temperature. This relation is at constant temperature. So according to Boyle's, the volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure at constant temperature. So volume is inversely proportional to pressure, but when at constant temperature. So we have the formula V is proportional to 1/P. We remove the proportionality by adding a constant K by P, and we can say PV equal to K. So by PV equal to K, K equal to Boyle's constant. और एक बात ध्यान रखना कि ये एक और डेफिनेशन बॉयल की यहाँ भी कह सकते हैं इस तरह से भी, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज अनदर डेफिनेशन अगेन, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दिस इज द फॉर्मूला। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ओनली वी आर गेटिंग दिस वन, P1 V1 equal to P2 V2. We will solve the numerical with the help of this formula. So we, for gas laws in general, we require the definition, the formula, and then we have the graphical representation, which is again very important in this chapter. Remember the graphical representation. I have given you 3 graphs. The first one is between P and 1/V, so it will be a straight line. And be very careful that this one, with the help of slope, you will be able to do it. T3 is greater than T2, then greater than T1. These type of question also मतलब आ सकते हैं, कहीं भी 3 ऑब्जेक्ट दे दिए, 4 ऑप्शन, ये एक जगह T2 ग्रेटर, तो रिमेंबर T3 सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T1. विद द हेल्प ऑफ स्लोप यू विल बी अंडरस्टैंड द मीनिंग। देन अगर मैंने ये वाली ग्राफ में लिखा नहीं था, आई विल राइट इट इज बिटवीन PV, it is between PV, it is between PV versus P. Okay, in this we will be observing that जितना प्रेशर बढ़ा रहा हूँ PV कांस्टेंट है, बिकॉज PV इज कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अभी अपन ने पढ़ा है, डेफिनेशन देखी थी आपने ये वाली, PV द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, वॉट एवर द प्रेशर वी आर इंक्रीजिंग इट इज नो एनी इफेक्ट because the temperature is constant. This graph is again very important. Then the next graph will be between P and V. They are inversely proportional. जितना आप प्रेशर को वॉल्यूम बढ़ा रहे होते प्रेशर घट रहा है. Again I am giving you 3 graphs, T, T, T. So this one suppose T1. This will be T1. This will be T2. And this will be T3. So in this case we can say T1 greater than T2 greater than T3. So these are the 3 graphical representation are very much important. You have to take care that you should remember them. Then PV curve at constant temperature is called an isotherm. Remember, if anyone asks you what is Boyle's isotherm, so you have to keep in mind Boyle's isotherm are the curve, these curve are Boyle isotherm. Now significance of Boyle's law. Gases are compressible. Gases are compressible. क्या मतलब? यानी क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है, जितना प्रेशर कम करोगे उतना ही वॉल्यूम, प्रेशर बढ़ाओगे उतनी गैसेस कंप्रेस हो जाएगी, सो दे बिकम डेंसर, डेंसिटी बढ़ जाएगी. तो एक एप्लीकेशन, जैसे कि अगर हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है अपन, हिल स्टेशन पे जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, सबको पता है.
तो एयर इज लेस डेंस, क्यों? क्योंकि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा उतना ही एयर के अंदर ऑक्सीजन कम होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी. एज अ रिजल्ट लेस O2 इज अवेलेबल फॉर ब्रीथिंग एंड द पर्सन फील्स अनईजीनेस. So I hope this is a very good like significance of Boyle's law, and this disorder is given by the name altitude sickness. मतलब बीमार है एल्टीट्यूड की वजह से. जैसे ही एल्टीट्यूड या ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो अपना प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. So this is about Boyle's law. According to Boyle's law, this is definition, then graph, then formula, and then significance. Let's come to the next law. This is given by the heading Charles law. The next law is given by the heading Charles law. Now you should know the relation between. We'll move further. That volume and temperature here are directly proportional to each other, keeping the pressure constant. Here the pressure is constant. So what we will be taking here, the definition देखो, the volume of a given mass of a gas, ये increase or decrease by 1/273 of its volume at 0 डिग्री सेल्सियस. देखो ये वॉल्यूम गैस का है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कह रहा है कि जो गैस का वॉल्यूम है वो जो 0 वॉल्यूम से अगर आप कंपेयर करोगे तो देखा जा रहा है उसका 1/273 टाइम्स घट रहा है. तो इंक्रीज या बढ़ रहा है या घट रहा है. तो बस डेफिनेशन ऐसे देख लो एक दफ़ा स्टेटमेंट के लिए. द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इंक्रीज और डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन और फॉल इन टेम्परेचर. इतनी लंबी बातें जो होती है बस ये फॉर्मूला याद कर लो आप. ये फॉर्मूला पूरे डेफिनेशन को डिपेक्ट कर रहा है. वॉल्यूम ऑफ अ सर्टन मास ऑफ अ गैस इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पर अपन माइनस साइन भी लगा सकते हैं, ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री फॉर एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर. यहाँ जैसे अगर राइज कर रहे हैं तो प्लस आता जा रहा है और अगर माइनस कर रहे हैं तो मतलब घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस आता जा रहा है. इस तरह से ये फॉर्मूला आया, इसी में से ओरिजिन हुआ. अब वो कह रहा है जैसे अगर उसने एक्सपेरिमेंट करा तो टेम्परेचर घटा देगा यहाँ तक कि -273 पे आ गया. जैसे यहाँ पर अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे -273 ये 0 हो जाएगा ना पूरा. तो ये VT इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. अब इसका मतलब क्या हुआ कि -273 विल हैव 0 और नो वॉल्यूम मीन्स इट विल सीज टू एग्जिस्ट. मतलब क्या, गैस गायब हो गई. अब अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है कि मास कहीं पर भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. तो मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही स्पेशल बेटा टेम्परेचर है जो कि आपका ये -273 है. इस टेम्परेचर पे गैस फेज ख़त्म हो जाती है और क्या आ जाता है लिक्विड फेज. क्योंकि आप जानते हो जब कूलिंग करते हैं तो गैस लिक्विड में आती है, क्योंकि सॉलिड मतलब हाई टेम्परेचर पे वो गैस में रहेगी. तो एक मतलब एक्सपेरिमेंट करा ये चार्ल्स ने, वो टेम्परेचर यहाँ पुट करता गया. आखिर में उसने देखा कि एक टेम्परेचर आया जब -273 आया तो ये देखो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया ऊपर तो ये पूरा 0 हो जाएगा. तो VT मतलब वॉल्यूम 0 का मतलब क्या हुआ, ख़त्म हो गया. लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती. इसका मतलब है गैस कहाँ चली जाएगी, लिक्विड में. तो दिस इज द टेम्परेचर. देखो द लोवेस्ट टेम्परेचर दिस इज -273 एट विच अ गैस इज सपोज टू हैव 0 वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट 0. और एब्सोल्यूट 0 पे गैस कहाँ में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, लिक्विड फॉर्म में गैस कन्वर्ट हो जाती है. तो दिस इज चार्ज लॉ. और उसके बाद देखो डेफिनेशन है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी दूंगी अभी मैं, तो ऑलरेडी बता देती हूँ मैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बिकॉज ऑफ दिस ओनली द फॉर्मूला ये वाला आया है V1/T1 इक्वल टू V2/T2. एंड देन व्हेन यू टेक द ग्राफ प्लीज रिमेंबर फॉर चार्ज you are not supposed to draw the graph from the origin 0 because we have to mention the -273.15. These are for this P1 और P1 is less than. वहाँ पर ध्यान रखना इस पे कि यहाँ पर बॉयल्स में जो T3 था ये सबसे बड़ा था यहाँ वाला, और यहाँ पर जो इस साइड आ रहा है जब उसको आप लोगे तो P1 is less than P2, P3, P4. Understood? And I think you know the reason. Because both are inversely proportional, volume and pressure. I hope it is clear. So this is all about Charles' law. Now let's come to the next one, that is known as Gay-Lussac's law. Gay-Lussac's law. अच्छा, चार्ल्स का एक बात और बताना थी मुझे कि ये चार्ल्स आइसोबार है. यहाँ पर ने लिखा नहीं है बट अपन लिख लेते हैं. These are Charles isobar. You know why? Because here the pressure is constant. So this is given by the name Charles isobar.
These are Charles isobar. And when we come to the next one, Gale-Yusek's law. Gale-Yusek's law is also given by the name Amonton's law, and it is given isochore. Here the volume beta is constant. So what is constant here? Volume is constant. Now, at constant volume, pressure is directly proportional to temperature. So at constant volume, pressure is temperature, और Charles ने कहा था volume is directly proportional to temperature. Here the volume is constant, so the formula again you will be getting P1 upon T1 equal to P2 upon T2, and then again you have the same one, same graph and same relation. Okay, so this is Gale-Yusek's law. Let's come next to the fourth one, that is Avogadro law. Now Avogadro law क्या कहता है, ये तो अपन ने 9th क्लास में पढ़ते हैं. Equal volume of all gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of molecules. तो equal volume जो भी गैसेस हैं उनका अगर कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर की सेम है तो उनके अंदर मॉलिक्यूल भी जो है वो इक्वल होते हैं. और अब मैं आपको एक चीज़ और समझा रही हूँ जरा सी, ये लॉस खत्म हो गए. ये अपना मोलार वॉल्यूम जो है ना, मतलब 1 मोल का वॉल्यूम गैस का डिफरेंट कंडीशन में अपन को जरा सा बताना. 2 कंडीशन है मतलब मेन. एक तो एसटीपी की जो कि हमेशा अपन यूज़ करते हैं, एसटीपी की कंडीशन में वो 0 डिग्री सेल्सियस मानते हैं अपन, और 273.15 केल्विन. ये हमारी जो कंडीशन है वो एसटीपी वाली है. इसमें प्रेशर हमारा 1 atm प्रेशर है, टेम्परेचर 0 डिग्री है, 273.15 केल्विन. द वॉल्यूम हेयर इज 22.4 लीटर फॉर 1 मोल ऑफ द गैस. ये याद रखें, अगर हमारे पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, ये हमेशा अपन पढ़ते हैं, और 273 केल्विन भी कहते हैं, 0.15 हटा भी सकते हो, खाली 273 केल्विन कह दो, तो 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होगा हमारे पास, 22.4 लीटर. अगर हमारा 1 बार प्रेशर है, क्योंकि 1 बार में और 1 एटमॉस्फेयर 0.987 का फर्क होता है, तो 1 बार में 0.987 एटमॉस्फेयर होते हैं, तो वॉल्यूम भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 बार एटमॉस्फेयर से कम है, तो मोलार वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जो कि हो जाएगा 22.7, 22.4 से 22.7. तो अगर आप बार ले रहे हो तो 22.7 लीटर पर मोल हो जाएगा. अगर आप एटमॉस्फेयर ले रहे हो तो आपका 22.4 लीटर हो जाएगा. ये सब एसटीपी कंडीशन है, और टेम्परेचर दोनों जगह 273.15 या 273 खाली कह सकते हो, रह सकता है. ये तो एसटीपी वाले तो जनरल कंडीशन है. इसके बाद एक और कंडीशन आती है जिसे कहा जाता है एसएटीपी. एसएटीपी ध्यान रखो, फर्क क्या हुआ एसएटीपी और एसटीपी में. तो कोई एसटीपी में टेम्परेचर 273.15 था, यहाँ पर टेम्परेचर है 298.15 केल्विन. रिमेंबर दिस, 298.15 केल्विन है, प्रेशर 1 बार है यहाँ, और वॉल्यूम 24.7 हो जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा 24.7. तो ये कंडीशन कभी आ सकती है, एसएटीपी की भी नहीं है. एसएटीपी का फुल फॉर्म है बेटा स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. मतलब ये भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बट ए का मतलब एम्बिएंट temperature and pressure. So this is it about the molar volume. Now let's come to the next heading, that is known as ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन सब जानते हैं. जो आइडियल गैस होती क्या है, वो गैस जो सारे गैस लॉज को ओबे करती है, बट वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसी गैस कोई नहीं होती है. उसका इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT. उसी से अलग अलग कंडीशन में अगर R और M को आपने कांस्टेंट मान लिया, तो P1 V1 अपॉन T1 जो कि बहुत यूज होता है, इक्वल टू P2 V2 बाई T2. ये कंबाइंड गैस ला इक्वेशन है. रिमेंबर, 2 इक्वेशन को कंबाइन कर दिए, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम कंडीशन. आपको ऐसे याद कर लो बस. फिर डेंसिटी और प्रेशर में भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, क्योंकि यहीं से आए हो. एम के बदले मैंने WB बाई MP रखा, जैसे अलग से समझाए थे मैंने. जैसे अगर आपके पास PV इक्वल टू nRT है, अगर मैंने P अलग ले लिया तो ये आ जाएगा nRT बाई V इक्वल टू, M के बदले मैंने WB RT अपॉन MB इंटू V लिया. अब मुझे पता है मास बाई वॉल्यूम, ये मेरा डेंसिटी हो जाएगा, तो P मेरा आ जाएगा DRT बाई M, वेयर M इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड. दिस फॉर्मूला, M is molecular mass of the compound, D is density, R gas constant, and T is the absolute temperature. Be very careful in Kelvin. You are not supposed to take it in Celsius. Okay. So these are the formulas. One thing I have done in this video, that I have not done formulas separately. I have done it with the key points only. I have divided the
states of matter into two parts, keeping the formula here only. Now, next we have value of R. Now we have at different condition we have different values of R. So please take care of this. Now R may be 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per mole, or if you are taking centimeter cube then 82.1. If you are taking bar then 0.082 है, ये 0.083 हो जाएगा. In अर्ग 8.314 इंटू 10 टू पावर 7, और अगर जूल में ले रहा हो, ये किलो पास्कल, ये केल्विन पास्कल, ये जो सब है ना, किलो पास्कल सॉरी किलो पास्कल, ये जूल है, यानी जूल पर केल्विन पर मोल. अगर इसमें ले रहा हो, ये पूरा यही है मतलब. तो 8.314, और अगर कैलोरी में ले रहा हो तो 1.987 या 2 याद कर सकते हो. तो ज़्यादातर इसमें कैलोरी वाला यूज़ होता है, ये जूल वाला होता है, और ये भी होता है. ये तो चलो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सा भी यूज़ करोगे तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नियरली सेम. ओके, so this is all about ideal gas equation and the units of R. Let's come to the next heading. What is the next heading given here? Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure कहता क्या है? एक साइंटिस्ट था डेल्टन, उसने ये कहा कि अगर हमने एक, जैसे कि हमारा कंटेनर है मान के चलो, इसमें हमने गैसेस भर दी, ठीक है, इस कंटेनर में हमने गैसेस भर दी, और उसकी कंडीशन यही है, एम्स में क्वेश्चन आया था कि गैसेस मतलब स्टेटमेंट में दे शुड बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस. अगर आप रिएक्टिंग गैसेस करोगे तो फिर ये डेल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं होगा. तो अगर मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैंने नॉन रिएक्टिंग गैसेस भर दी, तो ये देखा गया कि टोटल प्रेशर उस कंटेनर का इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस. तो देखो ये मैंने क्या लिखा है, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय नॉन रिएक्टिंग गैसेस, especially you have to remember this, non-reacting gases enclosed in a vessel, closed vessel, is equal to the partial pressure of each gas. समझ गए? तो total pressure जो है equal to partial pressure, but the condition is that the gases should be non-reacting. So this is the equation. This is P denote for partial total pressure. P is total pressure. This one. This is total pressure. And these P1, P2, P3 are like P1, P2, P3 are partial pressure. Okay, children. So this is about the Dalton's law, very important. That total pressure will be equal to sum of partial pressure of the gases enclosed in a closed vessel, but the condition is that the gases should be non-reacting gases. Now we have a very good application of Dalton's law. Please remember very well. Dalton's law is used to determine the partial pressure of dry gas. Is used to determine the partial pressure of dry gas. कैसे? जैसे यहाँ पर समझना अच्छी तरह, जो गैसेस होती है ना बेटा, वो मतलब पानी में, क्योंकि गैस तो उड़ जाएगी, तो उनको जब अपन कलेक्ट करते हैं कहीं पर भी, किसी लिक्विड में करते हैं, नॉर्मली वाटर में करते हैं. अब जब हम टोटल प्रेशर देखते हैं तो हमारे पास, हमें जैसे प्रेशर ऑफ ड्राई गैस चाहिए, तो उसमें पानी भी मिला होता है, तो हमें पानी को हटाना होता है, पानी के प्रेशर को. तो इसलिए क्या है फॉर्मूला प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का? मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन. सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एक्वस टेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्वस टेंशन इज द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स. Okay, so aqueous tension is what? Pressure of water vapors, and this is like the formula by which you can detect the pressure of dry gas. So pressure of dry gas equal to pressure of moist gas minus aqueous tension, where aqueous tension is the pressure of water vapor. Also with the help of this law, partial pressure of the gas can be determined. Again the very important formula. Partial pressure किसी भी गैस का निकाल सकते हैं by knowing the total pressure and multiplying it by mole fraction. So please remember this formula. Partial pressure equal to total pressure into mole fraction. So all the formulas are in between the key points and very very important. So please take care of all the formulas. Now the next one, we come to the next heading. ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये NCERT में नहीं था. 2020 के अंदर जो नई NCERT आई है उसमें ये आया है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. इसलिए मैं ये बात स्पेशली बोल रही हूँ. कुछ लोग सोचते हैं कि बस NCERT का टॉपिक ही आएगा, तो ये NCERT में आ चुका है. तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन क्या कहता है? अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन सेम है, देन
the rate of diffusion or effusion of different gases are inversely proportional to the square root of their densities. क्या मतलब, अगर हमारे पास टेम्परेचर प्रेशर सेम है जैसे, तो जो गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं, डिफ्यूजन का मतलब है समझो गैसेस का मिक्स हो जाना। इफ्यूजन का मतलब होता है जैसे एक टायर है, टायर के अंदर जब अपन कहते हैं कि टायर पंक्चर हो गया तो उसमें से गैस निकलती है कि स्मॉल होल से, उसे कहते हैं इफ्यूजन। तो गैस का मिक्स हो जाना, अगर डिफरेंट गैसेस डिफ्यूज हो रही हैं तो देखा गया वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही डिफ्यूजन कम होगा। ये खुद मतलब नेचुरल चीज़ है जो समझ में आ रही है। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन कम होगा, डेंसिटी कम होगी तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, देयर इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो इसी हिसाब से एक फॉर्मूला आया R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D2 बाई D1, मतलब दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन दिखा रहा है R1 और D2। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ डेंसिटी। और रेट ऑफ डिफ्यूजन को ये भी कह सकते हैं अपन, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब रेट क्या, मतलब जैसे स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम, इसी रेट स्पीड होता है। वॉल्यूम जितना गैस का डिफ्यूज हुआ अपॉन टाइम टेकन, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। ऐसे ही हम जानते हैं, अभी हमने देखा एक फॉर्मूला देखा था आपने, यहाँ पर देखिए P इक्वल टू DRT/m, ये वाला P इक्वल टू D, pressure and density are inversely like directly proportional, so the same formula we can take it in the form of this, density of pressure same है, molecular mass भी उसके हिसाब से चलेगा। तो R1/R2 इक्वल टू M2/m, these two formulas are very important, इसमें भी न्यूमेरिकल आते रहते हैं। Now if two gases are taken at different pressure, अगर दो गैसेस हमने ली डिफरेंट प्रेशर पे, then the law can be written as प्रेशर डिफरेंट है और हमें पता है प्रेशर और डेंसिटी आपस में सेम आ रहा है। तो R1/R2 इक्वल टू, देखो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज P1/P2 अंडर रूट ऑफ D2/D1, D2/D1 और प्रेशर का ऐसा करती है इक्वल टू P1/P2 अंडर रूट ऑफ M2/M1, अगर हम प्रेशर डिफरेंट प्रेशर है तो, ठीक है। और अगर दोनों गैसें डिफ्यूज हो रही हैं उनका प्रेशर सेम है तो फिर R1/R2 क्या आ जाएगा, T से अपन करेंगे उसका T1/T2 अंडर रूट में आएगा TB। तो ये फॉर्मूला मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन खुद निकल जाएंगे और देख लेना, लेकिन आ सकता है इसमें से आते रहता है। फिर अगर वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट नहीं है तो फिर V1/V2 T कांस्टेंट है यहाँ पर, और ये V1/V2 ये करके आ गया। और फिर टाइम से अगर करोगे, ये वाला ज़रा ज़्यादा देख लेना अच्छी तरह, टाइम से करोगे तो R1/R2 इक्वल टू सिंपल वाला ये वाला पहला वाला V, ये वाला V/T वाला, तो V1/T अपॉन V2/T, तो ये आ जाएगा V1/V2, ये V/T1/V/T2 equal to T2/T1 under root of this. So all I think the origin is not difficult. Origin is only from this formula, this and this, and then we are keeping the condition. After this we have logarithmic plot for Boyle's law and Charles law. This again एक दफा मैंने देखा था क्वेश्चन इसका, तो ये ऐसी चीजें कहीं भी आ जाती हैं। जैसे अगर हमारा PV कांस्टेंट है, ये अपना बॉयल्स का वो है फॉर्मूला, डेफिनेशन भी इसमें से आई थी ना, PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर हमने लॉग लिया तो log P प्लस log V इक्वल टू कांस्टेंट, log P को मैंने अलग कर दिया तो log P इक्वल टू माइनस log V प्लस कांस्टेंट। इफ यू टेक इक्वेशन नंबर 1 एंड यू प्लॉट log P वर्सेस log V, you will be getting a linear line with a minus slope. ये भी बताना चाहिए। Equation 1 may be written as log P equal to, we can write log 1 by V also plus constant. So if you have log P and log V, you will be getting a straight line with the negative slope, and if you have log P upon log 1 by V, you get a straight line from this side and the angle will be 45 degrees Celsius. So this is once it came like this, so you should know it. Otherwise you can drive it yourself also. And the slope for log P upon log 1 by V is positive slope equal to 1, and that tan theta equal to 1 because theta will be 45 degree here. Now next will be Charles law. According to Charles law, if you take the logarithm form, we know log V by T equal to constant because it's related with volume and temperature. So log V minus log T equal to constant. If you take log V separately, it will be log T plus constant. If you plot the graph between log V and log P, then again you will be getting a straight line with the slope equal to 1, positive slope as above, and angle equal to 45 degree. Okay, children?
Now, the next heading will be Boltzmann constant. Boltzmann constant is K. You should know what is Boltzmann constant. K equal to R upon N. Please remember this. K is Boltzmann constant equal to R is the gas constant upon N is Avogadro number. We will be getting this value. We will take it in kinetic theory. We are having Boltzmann constant. And then the last thing, gases having the same molecular mass have same rate of diffusion. क्योंकि डिफ्यूजन डिपेंड करता है मोलिकुलर मास पे. तो अगर गैसेज हैं जिनका मोलिकुलर मास सेम है, तीन, जैसे ये तीन है CO, N2 और C2H, तीनों का गैसेज का मोलिकुलर मास सेम है, तो इसलिए इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी सेम आ जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट दिस, एंड वी हैव डन द वीडियो इन टू division, and we have introduced one thing extra here, that the for formulas we have not done another video, we have done it in between. तो दोनों वीडियोज़ में formulas साथ साथ आपको मिल रहा है, and I hope that you will read this one very important. After that we will start with the second video, which will be for the states of matter, kinetic molecular theory of gases. Don't forget to subscribe the channel and like the video and share with many of your friends which are giving IIT and NEET. So thank you, Dr. Amina. Classes Dr. Amina, HOD Chemistry. Goodbye.